बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. In our previous class, I gave you some review about large number. Today we start our unit number 1. So first you make the title page of unit number 1, large number, and the lesson number 1 is 4 and 5 digit number. Okay? Now look at the board. Look at this 4 digit number. Look at these numbers. These all number have 4 digit. ठीक है, इन सारे numbers में आपको क्या कितनी values digit नजर आ रहे हैं? 4 digit. So these all numbers show that they all are in 1000. ये सारी किसकी values है? 1000 की values हैं. We read these numbers as 4532, 3256, and this is 7327. Now look at this number. This number has 5 digit. ठीक है, इस नंबर में कितने डिजिट हैं? 5 डिजिट हैं. So we write the place value of each digit. It is unit, tens, 100, 1000 and then 10,000. Now write the place value of each digit. 2 it is 10,000. ठीक है, 2 की place value क्या है? 10,000 and 10,000 है 5 digit. So 2 में इसके कितने digit होंगे? 5 digit होंगे. अगर 2 पहला digit है तो बाकी के 4 digit क्या होंगे? 0, 1, 2, 3 and 4. It become 20,000 plus 4 की place value क्या है? 1000. और 1000 में कितने digit होते हैं? 4 digit. Write 1 4. पहला digit 4 है तो बाकी के 3 digit क्या होंगे? 0, 1, 2 and 3. It become 4000 plus 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? 100. 100 में कितने डिजिट होते हैं? 3 डिजिट. सो वी राइट 5 एंड 2 0. इट बिकम 500 प्लस 3 की प्लेस वैल्यू है 10. 10 में 2 डिजिट होते हैं. सो वी राइट 3 और दूसरा नंबर क्या होगा? दूसरा डिजिट होगा 0. इट बिकम 30 प्लस 6 ऑन द यूनिट प्लेस. और यूनिट में एक ही डिजिट होता है. सो वी राइट ओनली 6. It is 20,000, 4,000, 500, 30 and 6. So the number is become 24,536. 24,536. Now come to the exercise. Look at your question number 1. These arrow cards show the number of each digit. ये जो arrow card है इन पर आपको values नजर आ रही हैं. आपको इसको numbers में change करना है. Write the number show by each set of card. Look at part A. Question number 1 on page number 4. Look at the arrow card. $50,000. इस पे क्या वैल्यू लिखी हुई है? 50,000. सेकेंड एरो कार्ड पे 9,000, 200, 30 एंड 1. ठीक है, इसको जैसे अभी हमने एग्जाम्पल करी तो बिल्कुल इस तरह से सॉल्व करेंगे. 50,000 प्लस 9,000 प्लस 200 प्लस 30 and plus 1. So the number is become 59,231. 59,231.
231. दिस इज योर आंसर. ठीक है, आपको इसी तरीके से पार्ट बी सी डी सॉल्व करने हैं सॉल्यूशन में से देखकर. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 on page number 5. In question number 2, match the number sentences with the correct numerals. आपको जो है आपको word sentences given है लेफ्ट साइड पर बुक की और राइट साइड पर आपको numerals given है, numerals also called numbers. ठीक है, आपको मैच करना है इसको करेक्ट वर्ड से करेक्ट नंबर को. Look at part A. In part A is approximately 2,000 200 people visited the museum on its opening day. Write the numerals. This is 1,000, 1,734. Second one is 2,200. The third one is 2,450. Fourth is 51,000. And the fifth is 245,000. It is 6-digit number, so we read this number as 245,000. All right. Read again. Approximately 2,200 people visited the museum on its opening day. आप इधर से देख लीजिए 2,200. It is 2,200. No, it is not 2,200. This is 2,200. Yes, this is. So we match this words with this number. All right. Now look at part B. The population of Inverness is approximately 51,000 people. Okay, the population of Inverness is approximately 51,000. Now look at 51,000. Numbers में आप देखिए 51,000 कहाँ है? It is 51,000. No, it is not 51,000. This is 51,000. Yes, it is. So we match this word sentence with this number. Okay, you have to solve part C, D and E from your given solution. Now come to the question number 3. Write the number show on each abacus. Write the number show on each abacus. Look at question number 3 from page number 5. First of all, what is abacus? Abacus is a simple counting machine which made up of wooden rod and wires and the beads. Look at the definition of abacus. Simply abacus is a simple counting machine. ठीक है, उस पर आप नंबर्स को क्या कर सकते हैं? इजीली काउंट कर सकते हैं. Look at part A. These are the wires of abacus. ठीक है, और ये वुडन रॉड है और वाइड्स के अंदर बीड्स क्या होते हैं? स्लाइड हुए हुए होते हैं.
ठीक है, नाउ काउंट दिस बिट्स 1 2 3 4 5 and 6. So we write number 6. Count the next byte 1 2 3 and 4. So we write number 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So we write 9. 1 2 and 3. So the number is become 6493. You have to solve part B, C and D from your given solution. Now look at, try this. Try this of page number 5. In try this, which different number can you make on this abacus with 5 bits? आपके पास जो abacus है ये एम्प्टी है, यानी इसमें कोई बीट स्लाइड नहीं हुआ हुआ, आपको बीट्स जो है साइड में गिवन है, 6 बीट्स हैं यहाँ पर, लेकिन आपसे कह रहे हैं कि आप 5 बीट्स यूज करते हुए डिफरेंट नंबर्स मेक कीजिए। तो किस तरह से करेंगे आपकी अपनी चॉइस है, आप जितने चाहें इस अबाकस में बीट्स को पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 5 वाइड्स हैं इस अबाकस के, और आपके पास 6 बीड्स हैं, लेकिन आपसे कहा है कि आपको 5 बीड्स यूज करते हुए नंबर्स बनाने हैं। तो आपकी अपनी चॉइस है, आप जितने वाइड में चाहें बीड्स डाल सकते हैं। तो मैं पहले वाले वाइड में 2 बीड्स पुट कर रही हूँ, 2। ठीक है, अब मेरे पास सिर्फ 3 बीड्स बचे, तो आपकी मर्जी है, आप यहाँ डालना चाहें आप डालें, नहीं डालना चाहें तो नहीं। तो मैं यहाँ नहीं डालूंगी कोई भी बिट, 1 यहाँ पुट करा मैंने, यहाँ पर हूँ और एंड यहाँ। नाउ राइट द नंबर विल बिकम 2। यहाँ कोई भी नहीं है, सो वी राइट द नंबर 0 1 1 and also 1. It is 5 digit number. So we read this number as 20,111. आपके पास चॉइस है, आप इसके साथ मजीद 2 और बना सकते हैं। Okay students, you have to complete this lesson number 1. Now look at your diary. डायरी क्या है आपकी? You have to complete lesson number 1 from the given solution, page number पेज नंबर 4 and 5. ओके, ठीक है, पेज नंबर 4 और 5 से आप ये सारा वर्क कंप्लीट करना लेसन नंबर 1 का। एंड ऑल्सो यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। You have to solve this question number A and B. 1 का पार्ट A और B सॉल्व करना है आपने। These questions are not in your book and your solution. You have to solve by yourself. ठीक है, आपको ये खुद से सॉल्व करना है अपने होमवर्क में। ठीक है, now come to the lesson number 2. Lesson number is 2. ये lesson number 1 की डायरी है। Lesson number 2 is comparing numbers. First you make the title page of unit number 1 large number and the lesson number 2 is comparing number. What is the means of comparison? Comparison का मतलब क्या होता है? Comparison is a technique
by which you find out the similarity and difference between two numbers and two objects and two pupils. आप दो चीजों के दरमियान में डिफरेंस या उनके अंदर क्या चीज सेम है ये बता सकते हैं. अब मैथ्स में कंपैरिजन किस तरह करेंगे? जाहिर सी बात है मैथ्स में नंबर्स के दरमियान में आप कंपैरिजन करते हैं. लुक एट दिस नंबर्स. ठीक है, इन नंबर्स को आप गौर से देखिए. क्या देख रहे हैं आप? इट इज 453, इट इज 326. दिस नंबर इज लार्ज and this number is small as compared to this. It is 453, it is 326. Now look at these two numbers. इन्हें कंपेयर कीजिए आप. It is 342 and it is 732. इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? It is smaller as compared to this. ये लार्ज है और ये क्या है? स्मॉलर है. अब इन नंबर्स को देखिए आप. इट इज 434, इट इज आल्सो 434. दोनों ही क्या है? सेम है. तो मैथ्स में आप जो है सिंबल्स यूज करते हैं लेस, ग्रेटर और इक्वल को रिप्रेजेंट करने के लिए. दिस इज द सिंबल ऑफ लेस देन. ये किसका सिंबल है? लेस देन का. दिस इज द सिंबल ऑफ ग्रेटर देन. ठीक है, ये ग्रेटर देन का सिंबल है. एंड दिस इज द सिंबल ऑफ इक्वलिटी. इक्वल का साइन है ये, साइन ऑफ इक्वलिटी. ओके, इनके बीच सेंटर में आप, इनके बीच में आप साइन पुट कर लीजिए आप. इट इज 453, इट इज 326. 453 is this is large as compared to this, so we put the sign of greater than. 453 is greater than 326. Now put the sign between this. It is 342 and it is 732. So we put the sign of less because it is less and it is greater. ये दोनों ही सेम है तो आप साइन कौन सा पुट करेंगे? इक्वल का. बेसिकली दोनों साइन जो है वो सेम ही है. ठीक है, सिर्फ इनके डायरेक्शन का डिफरेंस है. जहां आपकी लार्ज वैल्यू आ रही होती है उस तरफ आपकी साइन का माउथ क्या होता है? मुंह यानी उसका खुला हुआ होता है. जैसे ये यहाँ पर 453 लार्ज वैल्यू है तो यहाँ आप देख रहे हैं कि साइन का मुंह जो है वो इस तरफ खुला हुआ है, लार्ज वैल्यू की तरफ. ठीक है, और जहां छोटी वैल्यू है उसकी तरफ मुंह क्या है इसका? साइन का बंद है. यहां देखिए, यहां लार्ज वैल्यू ये थी तो आप देखिए यहां पर इसका मुंह खुला हुआ है इस तरफ, इस वैल्यू की तरफ, और यहां क्या है? इसकी मुंह बंद है. ठीक है, ये आपकी आसानी के लिए. वैसे आपको याद इस तरह से करना है. दिस इज द सिंबल ऑफ लेस देन एंड दिस सिंबल ऑफ ग्रेटर देन. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. लुक एट क्वेश्चन नंबर 1. राइट द मिसिंग लेस और ग्रेटर. इन क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम पेज नंबर 6. ठीक है, आपने लेस और ग्रेटर के साइन पुट करने हैं. लुक एट पार्ट ए. दिस इज 302. यहां आपने साइन पुट करना है. एंड 203. पार्ट बी इज 472 एंड 400 एंड सॉरी दिस इज द पार्ट सी एंड 471. दोनों ही नंबर को कंपेयर कीजिए. इट इज 302, 203. सो 302 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू 203. ये लार्ज है और ये क्या है? स्मॉलर. सो वी पुट द साइन ऑफ ग्रेटर. ठीक है, लार्ज वैल्यू की तरफ आपके साइन का मुंह क्या होता है? खुला हुआ होता है. तो हम यहाँ पे ग्रेटर का साइन पुट करेंगे. नाउ कंपेयर दिस टू नंबर. इट इज 472 एंड इट इज 471. 472, 471. इट इज लार्ज एंड इट इज स्मॉल. एक नंबर का डिफरेंस है सिर्फ, लेकिन ये लार्ज है. हम यहाँ साइन पुट करेंगे ग्रेटर का. नाउ लुक एट अनदर पार्ट. पार्ट बी देख लीजिए. 589 and 598. Now compare these two numbers. It is 89, 589 and it is 598. So 98 is greater as compared to 89. So put the sign of less क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू लेस है और ये क्या है? लार्ज. Now come to the question number 2. Question number 2 is also on page number 6. Write the missing symbols in these number chain. आपके पास एक चेन गिवन है, आपको मिसिंग सिंबल इसमें पुट करने हैं. Look at part A. It is 849
साइन ग्रेटर का यहां लगा हुआ है, ठीक है। 498 इट इज लेस देन 1400। अब यहां कोई साइन नहीं है, यहां पे आपको सिर्फ एम्प्टी बॉक्स गिवन है। इट इज 1004। another box 1040, ठीक है। फिर आपके पास एक बॉक्स है एंड द लास्ट वन इज 1440। लुक एट दिस नंबर चेन, आप साइन पुट करिए, दो दो डिजिट को भी आप कंपेयर करेंगे, ठीक है। इट इज 849, 498, दोनों को और से देखिए। 849 लार्ज है एज कंपेयर टू 498, तो यहाँ पे साइन कौन सा पुट है, ग्रेटर का। नाउ कंपेयर दिस टू नंबर, इट इज 498 एंड इट इज 1400, तो 1400 इज लार्ज, तो यहाँ पर कौन सा साइन पुट है, लेस का। नाउ कंपेयर दिस टू नंबर्स, इट इज 1400 एंड इट इज 1004, it is 1400, it is 1004, so 1400 is large as compared to this, so we put the sign of greater. All right, now compare these two numbers, it is 1004, 1040, ये 40 है, इसके लास्ट पे 2 डिजिट देखिए और यहाँ पे 4 है, so this is smaller and this is large, so we put the sign of less. Now compare these two numbers, it is 1040 और ये क्या है, 1440। यहाँ पर सॉरी इट इज 1040 एंड इट इज 1440, 100 डिजिट में चेंजिंग है, यहाँ पे 400 है और यहाँ पर 0 है, सो दिस इज लार्ज एंड दिस इज स्मॉल, सो वी पुट द साइन ऑफ लेस। ऑलराइट, यू हैव टू सॉल्व पार्ट बी सी डी फ्रॉम गिवन सॉल्यूशन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3, राइट एट ईच सेट ऑफ प्राइस इन ऑर्डर, स्टार्ट विद द लोएस्ट प्राइस। आपको यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट गिवन है जिनकी आपको प्राइस दी हुई है, आपसे कह रहे हैं आपने इनको ऑर्डर में लिखना है। ऑर्डर मींस अरेंज करके लिखना है, स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट मतलब जिनकी प्राइस सबसे कम है, सबसे पहले आपने उसकी प्राइस लिखनी है। द प्राइस ऑफ गिटार इज 840 एंड द प्राइस ऑफ पियानो इज ₹780 एंड द प्राइस ऑफ कैमरा इज ₹480। सो कंपेयर दीज ऑल प्राइसेस, तीनों को कंपेयर करिए, मुझे बताइए सबसे स्मॉलर कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम पेज नंबर 7, ठीक है। आपने तीनों प्राइस को गौर से देखा, सबसे कम प्राइस किसकी है, कैमरा की है, तो हम सबसे पहले सबसे कम प्राइस लिखेंगे ₹480, ठीक है। हमने स्मॉलेस्ट से स्टार्ट किया, लोएस्ट प्राइस से, सो विद द साइन ऑफ लेस देन। ₹780, ठीक है। इसके बाद पियानो की प्राइस कम है, इट इज लेस देन टू रुपीस, जो सबसे ज्यादा प्राइस है वो किसकी है, गिटार की, तो हम सबसे लास्ट में से लिखेंगे ₹840, ठीक है। इस तरह से आपने बी सी और डी कंप्लीट करने हैं फ्रॉम द गिवन सॉल्यूशन से। नाउ लुक एट द डायरी रिलेटेड टू लेसन नंबर 2। You have to complete all work from given solution page number 6 and 9. Okay students, and also solve this question. आपको किस क्वेश्चन दे रही हूं मैं, ये होम टास्क में आपको ये कंप्लीट करने हैं क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। दिस इज नॉट योर इन बुक एंड इन योर गिवन सॉल्यूशन।
Okay students, you have to solve part A, B, C and D by yourself. Okay students, we start our next lesson and the lesson number is 3. Okay, first you make the title page of unit number 1 large number and the lesson number 3 is rounding to the nearest tens and 100. ये title page आपने पहले make करना. Okay, what is the means of rounding? Rounding means to turn. ठीक है, यानी आप अपनी वैल्यू को टर्न करते हुए उसको नियरेस्ट टेंस के करीब ले आए या तो फिर 100 के करीब. ओके, जिस तरह से क्वेश्चन में पूछा गया होगा आपसे. सपोज वी हैव अ नंबर, आपके पास एक वैल्यू है 127, आप इसे राउंड ऑफ करना चाहते हैं टू द नियरेस्ट 10 के. ठीक है, हम इसे किसके नियरेस्ट करना चाहेंगे राउंड ऑफ? राउंड टू द नियरेस्ट 10. टेंस में कितने जीरो होते हैं? 1. देयर आर 1 0 इन द नंबर 10. में एक जीरो होता है तो आपकी पूरी कोशिश होगी कि आपकी इस वैल्यू के लास्ट में एक जीरो आ जाए, यानी यूनिट प्लेस पर 7 की प्लेस पर 7 रिप्लेस हो जाए किससे? जीरो से. तो मैथ्स में हम कोई भी वैल्यू किसी से रिप्लेस ऐसे नहीं कर सकते बिना किसी टेक्निक के यूज किए हुए. लुक एट दिस 10 डिजिट नंबर, सॉरी 10 नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. These all 10 numbers are the basic number. ठीक है, ये सारे जो 10 नंबर्स आपके सामने लिखे हुए हैं ये बेसिक डिजिट है जिनसे पूरी काउंटिंग आपकी बनी हुई होती है. मींस 9 के बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा? 10. 10 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 0. 11 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 1. मींस कि पूरी काउंटिंग आपकी इन 10 डिजिट से मिलकर बनती है. इन 10 डिजिट में से जो स्टार्टिंग के जो 5 डिजिट्स है, स्टार्टिंग 5 डिजिट्स मींस 5 से जो लेस है 0 1 2 3 एंड 4, दीज आर द वीक नंबर. क्या है? ये वीक नंबर है, यानी कमजोर है. ठीक है, एंड द लास्ट 5 डिजिट नंबर्स, जो लास्ट के जो 5 डिजिट है, दीज आर स्ट्रॉन्ग नंबर. ये सारे क्या है? स्ट्रॉन्ग नंबर है. अब आपको जीरो में रिप्लेस करते वक्त अपने डिजिट को ये देखना है कि आपके पास वीक नंबर है या फिर स्ट्रॉन्ग नंबर है. अगर आपके पास वीक नंबर है तो आपकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगी, आप उससे जीरो में इजीली रिप्लेस कर सकते हैं अपने किसी भी डिजिट को. वीक नंबर में जीरो से क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं. लेकिन अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग नंबर है, यानी 5 या 5 से कोई बड़ा नंबर आपके पास आ रहा है, तो वो स्ट्रॉन्ग नंबर होते हैं, वो इजीली जीरो से रिप्लेस नहीं हो सकता, उनमें आपको कोई ना कोई चेंजिंग करनी होती है. Look at the number, it is 127. आप 127 को नियरेस्ट 10 के करीब लेके जाना चाहते हैं तो 10 में 1 0 होता है. आपकी कोशिश होगी कि आपकी इस यूनिट प्लेस पर एक जीरो आ जाए. सो लुक एट द नंबर 7. 7 इज द स्ट्रॉन्ग नंबर और वीक नंबर? 7 इज द स्ट्रॉन्ग नंबर और वीक नंबर? 7 इज द स्ट्रॉन्ग नंबर. तो ये जीरो में इजीली रिप्लेस नहीं होगा. जीरो में रिप्लेस होने से पहले ये अपना एक नंबर अपने लेफ्ट वाले नंबर को दे देगा, यानी 7 जीरो में रिप्लेस तो हो जाएगा लेकिन ये अपना एक नंबर इस लास्ट नंबर को दे देगा एंड 2 विल बिकम 3. 2 क्या बन जाएगा? 3. सो द नंबर इज 1 एज इट इज. 2 विल बिकम 3 और 7 की प्लेस पर अब आप जीरो लगा दीजिए. ठीक है, तो ये आपकी टेंस वैल्यू हो गई. इसकी नियरेस्ट 10 क्या वैल्यू है? 130. ओके, अब इसी वैल्यू को अगर आप राउंड ऑफ करना चाहें 100 में तो कैसे करेंगे? 100 में कितने जीरो होते हैं? 100 में 2 डिजिट होते हैं जीरो के. ठीक है, इसी ही नंबर को आप चाहते हैं कि आप इसको किसमें चेंज कर दें? 100 में चेंज कर दें, 100 में राउंड ऑफ कर दें. तो 100 में 2 जीरो होते हैं. सो वी सी द नंबर 10. 10 पोजीशन को देखेंगे. अब आप 10 की पोजीशन में देखिए नंबर क्या है? नंबर इज 2. 2 को देखिए, 2 इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर और वीक नंबर? 2 इज अ वीक नंबर. ठीक है, 2 क्या है? 5 से लेस है, सो इट इज वीक नंबर. दिस इज वीक नंबर. सो वी इजीली रिप्लेस दिस नंबर बाय जीरो. हम इसको आसानी से जीरो में चेंज कर सकते हैं. राइट 1 एज इट इज और 2 वीक नंबर है तो इधर कोई चेंजिंग नहीं होगी नंबर में. राइट 0 एंड 7 की प्लेस पर क्या आएगा? 0. सो 100 इज द नियरेस्ट 100 वैल्यू ऑफ द नंबर 127. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. लुक एट क्वेश्चन नंबर 1. ओके बेटा, ये आप
10 बेसिक नंबर लिखे टाइटल पेज पे बना लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से 10 डिजिट लिखकर वीक नंबर और स्ट्रॉन्ग नंबर का कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा टाइटल पेज पर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन पेज नंबर is 8। राउंड दिस नंबर टू द नियरेस्ट 10। आपको जो क्वेश्चंस गिवन है आपको उसको नियरेस्ट 10 के नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है। लुक एट पार्ट ए, इट इज 173। राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 में, तो 10 में कितने जीरो होते हैं? 1 0। तो आप यूनिट प्लेस को देखेंगे, यानी 3 की प्लेस पर आपको एक जीरो चाहिए। 3 इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर, वीक नंबर? 3 इज अ वीक नंबर, सो देयर इज नो चेंजिंग, ठीक है। वीक नंबर को जीरो में रिप्लेस करते वक्त आपको किसी चेंजिंग की जरूरत नहीं होती है। हम 3 की प्लेस पर इजीली क्या पुट कर सकते हैं? 0। राइट 1 एज इट इज, 7 आल्सो एज इट इज, एंड राइट 3 की प्लेस पर आप क्या लिखेंगे? 0। इट बिकम 170। तो 173 की नियरेस्ट 10 वैल्यू क्या है? 170। नाउ लुक एट पार्ट बी, इट इज 559। इसे भी आपने राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 में। 10 में 1 0 होते हैं, तो आप देखेंगे यूनिट प्लेस को। लुक एट द नंबर 9, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर, 9 इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर। तो ये 0 में रिप्लेस होने से पहले अपना एक 1 किसको देगा? लेफ्ट नंबर को देगा, यानी 9 0 में रिप्लेस तो हो जाएगा लेकिन अपना एक 1 डिजिट लेफ्ट वाले नंबर को देगा, यानी 5 को एक नंबर मिलेगा तो 5 विल बिकम 6। राइट 5 एज इट इज, 5 will become 6, and now write the number 0. It is 560. So 560 is the nearest rounded value to the 559. Now come to the question number 2. Question number 2, which is also on page number 8. In this question, round these numbers to the nearest 100. अब आपको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 में। 100 में कितने जीरो होते हैं? 2 0 होते हैं, तो अब आप 2 0 में राउंड ऑफ करेंगे वैल्यू को। लुक एट पार्ट ए, इट इज 224। 100 में राउंड ऑफ करते वक्त आप 10th वैल्यू को देखते हैं, यानी यूनिट को नहीं देखेंगे अब आप 10th डिजिट को देखेंगे। लुक एट द 10th वैल्यू, इट इज द स्ट्रॉन्ग नंबर और वीक नंबर? दिस इज द वीक नंबर, सो देयर इज नो चेंजिंग। वी राइट 2 एज इट इज एंड 0 आल्सो एज इट इज, ठीक है। वीक नंबर में चेंजिंग नहीं होती किसी भी नंबर में, आप उसको 0 में इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। नाउ लुक एट द पार्ट बी। पार्ट बी 635। इसे भी आपने 100 में राउंड ऑफ करना है। लुक एट द 10th पोजीशन। 10 पोजीशन को देखेंगे आप, 3 को देखेंगे। 3 इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर, वीक नंबर? 3 इज अ वीक नंबर, सो देयर इज नो चेंजिंग। वी राइट 6 एज इट इज एंड 0 पुट रिप्लेस दिस नंबर बाय 0, ठीक है। आपको कोई चेंजिंग की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 2 0 लगा सकते हैं। तो 600 इज द राउंडेड वैल्यू टू द नियरेस्ट 100। 635 की ये नियरेस्ट वैल्यू है 100, 600। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। In question number 3, complete the chart. अब आपने चार्ट कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन पेज नंबर 9। Round to the nearest tens. ठीक है, and round to the nearest 100. Look at part A. It is 748. टेंस में राउंड ऑफ करते वक्त आप यूनिट डिजिट को देखते हैं क्योंकि हमें एक ही 0 की नीड होती है, ठीक है। आप यूनिट डिजिट को देखिए। लुक एट द नंबर 8। 8 इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर और वीक नंबर? 8 इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर, तो 0 में रिप्लेस होते वक्त ये अपना एक 1 डिजिट किसको देगा? 4 को, एंड 4 विल बिकम 5. राइट 7 एज इट इज, 4 विल बिकम 5 एंड पुट 0 ऑन द यूनिट प्लेस, ठीक है। 750 इज द नियरेस्ट राउंडेड वैल्यू टू द नियरेस्ट 10। अब इसी नंबर को आपने 100 में राउंड ऑफ करना है। 100 में कितने 0 होते हैं? 100 में 2 0 होते हैं,
ठीक है, 2 0 100 में करते वक्त राउंड ऑफ। आप टेंथ पोजीशन को देखते हैं, लुक एट द टेंथ पोजीशन। टेंथ पोजीशन में देखिए आपके पास स्ट्रॉन्ग नंबर है या वीक नंबर है? दिस इज अ वीक नंबर। वीक नंबर को चेंज करने की जरूरत नहीं होती हमें, वी राइट 7 एज इट इज एंड पुट 2 0, ऑलराइट। 700 इसकी नियरेस्ट 100 वैल्यू है। नाउ लुक एट अनदर पार्ट, इट इज 1291। 1291 इस वैल्यू को देखिए, आपको इसको राउंड ऑफ करना है आपने टेंस में। टेंस में कितने डिजिट होते हैं? 0 के 1 ही होते हैं, तो आप यूनिट प्लेस को देखेंगे। लुक एट द यूनिट प्लेस, दिस इज 1 इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर, 1 इज द वीक नंबर। 1 इज द वीक नंबर, तो वीक नंबर को 0 में रिप्लेस करते वक्त किसी भी चेंजिंग की जरूरत नहीं होती। वी राइट 1 2 9 एज इट इज एंड पुट द 0। सो 1291 की जो नियरेस्ट राउंडेड वैल्यू है वो क्या है? 1290। अब इसी वैल्यू को आपने 100 में रिप्लेस करना है, 100 में राउंड ऑफ करना है। 100 में 2 0 होते हैं, सो वी सी द यूनिट टेंस प्लेस। टेंस प्लेस को देखेंगे अब आप, दिस इज 9। 9 इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर और वीक नंबर? 9 इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर, तो स्ट्रॉन्ग नंबर जब 0 में रिप्लेस होता है तो अपना एक डिजिट अपने लेफ्ट के नंबर को देता है, यानी 2 को देगा, एंड 2 विल बिकम 3। सो वी राइट 1 एज इट इज, 2 विल बिकम 3 एंड राइट 2 0। इट इज 1300। तो 1291 की जो राउंडेड नियरेस्ट वैल्यू 100 की वो क्या है? 1300। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट द चार्ट राउंड द डेप्थ ऑफ ईच ऑफ द ओशन और सी टू द नियरेस्ट 10 मीटर एंड 100 मीटर। आपको काम वही करना है इसके अंदर। आपको कुछ ओशन यानी सी दिए हुए हैं, पैसिफिक ओशन, उसकी एवरेज डेप्थ कितनी दी है आपको? 4028 मीटर। आपको नेक्स्ट कॉलम में उसको राउंड करना है, राउंड इट टू द नियरेस्ट 10 मीटर एंड राउंड टू द नियरेस्ट 100 मीटर। Look at question number 4, which is also on page number 9. Ocean या sea, एक ही चीज को कहते हैं, ठीक है। इस तरफ आपको एवरेज डेप्थ दी हुई है, डेप्थ यानी जो सी की जो गहराई है, और किसमें दी हुई है आपको? मीटर में दी हुई है। मीटर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ और डेप्थ, ठीक है, यूनिट होती है मीटर। और यहां आपको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट टेंस में, राउंड टू द नियरेस्ट टेंस। टेंस मीटर एंड राउंड टू द नियरेस्ट 100 मीटर। ओके, लुक एट पार्ट ए। पार्ट ए में आपके पास पैसिफिक ओशन दिया हुआ है, आपको पैसिफिक ओशन, ठीक है, ये नाम है ओशन का। और इसकी डेप्थ जो है वो कितनी है? 4028 मीटर, ठीक है। आप इसको देखेंगे और राउंड ऑफ करेंगे 10 मीटर में और 100 मीटर में। 10 में वही आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे अपना, 10 में 1 0 होते हैं, तो आप अपनी यूनिट प्लेस को देखेंगे, यूनिट प्लेस पर स्ट्रॉन्ग नंबर है या वीक नंबर, ये चेक करेंगे। लुक एट 4028 यूनिट प्लेस को देखिए, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग नंबर, 8 इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर। तो 0 में चेंज होने से पहले ये अपना 1 अपने लेफ्ट नंबर को दे देगा, यानी 2 को देगा, एंड 2 विल बिकम 3। सो द नंबर इज 4030 मीटर, ऑलराइट। Now round to the nearest 100. 100 में 2 0 होते हैं, so we see the 10th position. अब आप 10th position को देखेंगे। Look at the number 2. 2 is a strong number or weak number? 2 is a weak number. So there is no changing. यहाँ पर आप कोई चेंज नहीं करेंगे नेक्स्ट नंबर में, आप राइट करेंगे 4 as it is, 0 also as it is, और ये वीक नंबर होने की वजह से ये भी 0 में इजिली रिप्लेस हो जाएगा। 4000 मीटर, 4000 मीटर, ऑलराइट। You have to solve part B, इंडियन ओशन आपने खुद करने हैं फ्रॉम द गिवन सॉल्यूशन से। सारे वर्क आपने सॉल्यूशन से कंप्लीट करने। नाउ कम टू द डायरी। You have to complete all work.
फ्रॉम द गिवन सोल्यूशन पेज नंबर 10 and 14. All right, and solve these questions. ये आपने सॉल्व करने क्वेश्चन खुद ही से, मीन्स ये आपकी बुक में और आपके सॉल्यूशन में गिवन नहीं है, आपने ये खुद सॉल्व करना है. Round to the nearest tens. एंड 100. ठीक है, आपको जो भी वैल्यू मैं दे रही हूं वो आपने टेंस और 100 दोनों में ही राउंड ऑफ करनी है. पार्ट ए है 1653 एंड 2332 एंड सी इज 5363. ठीक है, आपने ये तीनों पार्ट खुद से सॉल्व करने हैं, ये सॉल्यूशन में और आपकी बुक में गिवन नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव गॉट इट, बट इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कीप वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन. ओके, और आपको लाजमी अपना वर्क 15 अगस्त तक कंप्लीट करके रखना है. ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू.